अच्छा, अब ये जो भजन मंडली है 25वां जागरण है, 25 सालों से, और रुड़के वाले यहाँ पे अपनी हाजिरी लगवाते हैं। देखो जी, सारा वर्ल्ड इसमें तो लाइव भी चलता है, और ये तो भगवती का इतना विशाल जागरण है, दूर दूर से इस भगवती के जगराते में सभी शामिल होते हैं। जब कीर्तन शुरू किया तो एक 7 साल की कंजक में माँ भगवती चिंतपूर्णी की हवा आई, तो उसने कहा भी भक्तों अब और क्या आप चाहते हो, मैं तो यहाँ आ गई हूँ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਜੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਆਪਣੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਪੂर्ण होती है। वो ये अरदास करते हैं कि महामाई आप हमारे साथ चलो। एक दिन माँ भगवती चिंतपूर्णी पुजारी के सपने में आई, उसने कहा अभी इन भक्तों की आसमरात पूरी करो। जब आप स्वरूप को दोगे तो आपने पूछ लेना भी आप कौन से गांव लेके जाओगे। पुजारी ने उनको बुलाया, भी आपकी महामाई ने मनोकामना पूर्ण कर दिया और आप स्वरूप ले लो। रुड़के वालों की सभी कुल देवी है, यही है कुल देवी है ना। अकाउंट नंबर वगैरह या कोई मंदिर का कोई बना हो, कॉन्टैक्ट करना हो, क्योंकि एनआरआई कोई नहीं आ सकता है, किसी की श्रद्धा होती है, तो जो आपके संपर्क करना चाहता हो अपना नंबर या कोई हमने बाकी हम नंबर बोल देते हैं 8289082009, ये हमारे सेक्रेटरी का नंबर है, आप इससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਨੀ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਪਿੰਡੀ ਰਾਣੀ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ? ਦੂਰੋਂ ਦਰਾਡੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? 25ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਰਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਜਾਗਰਣ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਰਬਲ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂਗੇ ਮੰਦਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਮਾਈ ਦਾ ਮੰਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਜੇ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ मनोकामना अपनी मांगना चाहता है तो इस पिंड दे विच आके, इस मंदिर दे विच आके बिल्कुल संपूर्ण होती है। क्या इसका इतिहास क्या है? आप हिंदी में बात करोगे तो हम हिंदी में जानकारी लेते हैं आपसे। क्या इतिहास क्या है इस मंदिर? हाँ जी, इतिहास है माँ भगवती चिंतपूर्णी का प्राचीन इतिहास बताया जाता है कि नज़दीक गांव रुड़का में कुछ माता रानी के भक्त हुए। उन्होंने मन में विचार किया कि हम माँ भगवती चिंतपूर्णी का मंदिर बनाएंगे। बहुत ही सज्जन लोग थे, उस टाइम ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, कच्चे रास्ते थे, पैदल जाते थे। वो सभी वहाँ चिंतपूर्णी हिमाचल प्रदेश में पैदल ही गए। वहाँ जाकर उन्होंने पुजारी से अरदास विनती की कि हम यहाँ मंदिर बनाना चाहते हैं, पिंडी रानी का स्वरूप लेने के लिए आए। पुजारी ने कहा स्वरूप तो एक ही है, यहाँ पे हम नहीं दे सकते हैं, अगर स्वरूप दे दिया तो यहाँ क्या रहेगा। उन्होंने जिद की रुड़के वालों ने, लेकिन पुजारी ने कहा कि भाई आपकी जो मनोकामना माँ चिंतपूर्णी पूर्ण कर सकती है। वो जैसे सुबह शाम माँ भगवती की आरती में शामिल होते थे, वो ये अरदास करते हैं कि महामाई आप हमारे साथ चलो। एक दिन माँ भगवती चिंतपूर्णी पुजारी के सपने में आई, उसने कहा अभी इन भक्तों की आसमरात पूरी करो। पुजारी ने कहा माता भाई स्वरूप तो आपका एक ही है, इसको हम दे देंगे तो यहाँ क्या रहेगा।
माता रानी का आप जब आप मॉर्निंग में सुबह मेरे दरवाजे कपाट खोलोगे तो आपको एक स्वरूप मिलेगा जैसे मेरा, उस जैसे मेरी आरती श्रृंगार ध्यान करते हो वैसे स्वरूप की करना। तो आरती करने के बाद, श्रृंगार करने के बाद इनको दे देना। जब आप स्वरूप को दोगे तो आपने पूछ लेना भी आप कौन से गांव लेके जाओगे। पुजारी ने उनको बुलाया, भाई आपकी महामाई ने मनोकामना पूर्ण कर दिया और आप स्वरूप ले लो। वो बड़ी खुशी खुशी से माँ भगवती का स्वरूप एक पालकी में लेने लगे। तो पुजारी ने कहा, अभी आप कौन से गांव लेके जाओगे। उन्होंने रुड़का कहा, पहले रुड़की का नाम उनकी ज़ुबान से निकला। तो इस तरह वो पालकी में सूप रख के बड़ी खुशी के साथ, कच्चे रास्ते होते थे, गीत संगीत कीर्तन करते हुए, जयकारे लगाते हुए वो पैदल ही चल पड़े। जहाँ पर वो चाय पानी पीते, माँ भगवती के स्वरूप को भोग लगाते, आप भी खाते, महामाई को भी खिलाते और चल पड़े। तो ये जेठ साठ की बातें हैं, गर्मियों के दिन होते थे। वो नज़दीक यहाँ अपने रुड़की में आ गए और एक बोर्ड के पेड़ के नीचे बैठ गए। भाई दोपहर होगी, गर्मी ज़्यादा, हम यहाँ से शाम को रुड़का चलेंगे। तो चाय पानी पीने के बाद जब इवनिंग में स्वरूप को उठाने लगे तो स्वरूप उनसे हिला भी नहीं। तो उन्होंने सोचा भाई हमसे कोई गलती होगी या त्रुटि होगी या, तो उन्होंने कीर्तन शुरू कर लिया। जब कीर्तन शुरू किया तो एक 7 साल की कंजक में माँ भगवती चिंतपूर्णी की हवा आई। तो उसने कहा, भाई भक्तों अब और क्या आप चाहते हो, भाई मैं तो यहाँ आ गई हूँ। उनमें से जो कोई बुजुर्ग था उन्होंने कहा, रुड़के वाले ने, भाई महामाई हम तो आपको रुड़के लेके जाएंगे। तो उस कंजक ने कहा, भाई आप याद करो आपने पहले रुड़की का नाम लिया था। तो अब मैं यहाँ रुड़की ही माँ भगवती का एक प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर आज भगवती रुड़की में स्थापित है। जो भी कोई भगत सज्जन किसी कारणवश भी उस दरबार में चिंतपूर्णी नहीं जा सकते हिमाचल में, तो माँ भगवती यही मनोकामना पूर्ण करती है। सोन महीने में सबसे बड़ा महामाई का मेला होता है और प्राचीन जो 25 माई विशाल जागरण है, बड़ी श्रद्धा धूमधाम के साथ NRI वीर ग्रामवासियों के सहयोग से हम बड़ी श्रद्धा से मनाते हैं। जो भी माँ भगवती के दरबार पे मत्था टेकता है वो खाली नहीं जाता। ये माँ भगवती का प्राचीन इतिहास है। इसी तरह मैं यहाँ बचपन से सेवा कर रहा हूँ। माँ भगवती की बड़ी कृपा है। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा बोल साचे दरबार की जय। अच्छा बीरबल शास्त्री जी, आपने बोर्ड की बात करी है, जो मंदिर के बाहर आज भी बोर्ड स्थापित है। हाँ जी, हाँ जी। ये वही वाला बोर्ड है या ये बाद में आया है या वो वाला बोर्ड है? वो ही बोर्ड है, ये वही बोर्ड है पुराना। जो ये इतिहास भी आप करीब 100 वर्ष पुराना इतिहास, उससे भी पुराना है ये, तो इसका कोई इतिहास ही नहीं है। तो रुड़के वाले जब आते हैं अब, या उनको भी जैसे आपके गांव वाले बता रहे थे कि उनको भी महामाई ने यही कहा है कि अब आप लोग जो है इसी मंदिर में आके माथा टेकोगे, हम क्योंकि स्थापित पिंडी यहीं पे स्थापित हो गई थी। रुड़के वालों की सभी कुल देवी अब यही है कुल देवी है ना। अच्छा, अब ये जो भजन मंडली है 25वां जागरण है, 25 सालों से, और रुड़के वाले ही यहाँ पे अपनी हाजिरी लगवाते हैं। देखो जी, सारा वर्ल्ड इसमें तो लाइव भी चलता है और ये तो भगवती का इतना विशाल जागरण है, दूर दूर से इस भगवती के जगराते में सभी शामिल होते हैं। और भगवती ज्योत के ही स्वरूप में सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। अच्छा, हम देख रहे हैं अब मंदिर की उसारी का काम भी चल रहा है, निर्माण काम चल रहा है। गांववासी जो है, इनके अलावा NRI या जिनकी मनोकामना पूरी होती है, सभी की मनोकामना पूर्ण होती है, सभी सहयोग करते हैं। और मैं सभी से हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि माँ भगवती का ये प्राचीन मंदिर है, सभी ने तन मन धन से माँ भगवती के इस नव निर्माण में जो कंस्ट्रक्शन का काम भगवती के दरबार में चल रहा है, सभी ने तिल फूल चोड़ पा के माया जो भी श्रद्धा अनुसार सभी ने सहयोग देना है। कोई अकाउंट नंबर वगैरह या कोई मंदिर का कोई बना हो, कांटेक्ट कर रहा हो, क्योंकि NRI कोई नहीं आ सकता, किसी की श्रद्धा होती है, तो जो आपके संपर्क करना चाहता हो अपना नंबर या कोई हमने कांटेक्ट नंबर या कोई अपना अकाउंट नंबर जो मंदिर का बना हो, हमने अकाउंट नंबर भी फ्लैक्स बना के रखे हैं, IFSC कोड सारा कुछ है। बाकी ये हम नंबर बोल देते हैं 8289082009, ये हमारे सेक्रेटरी का नंबर है। आप इससे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ भगवती का प्राचीन मंदिर है जी, इसकी हमने आपसे आज हिस्ट्री बताई है। धन्यवाद जी। हाँ जी, सुनिया ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਹਾਮਾਈ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ रुड़की ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੀਸ਼ ਬਾਵਾ, रुड़की।